and individuals with a view to increase the mobility and efficiency of the road transport system in the country. अब इससे आपको इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ गया होगा कि इसमें कितने ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, कितने रिसर्च करने वाले लोग इन्वॉल्व है, CPRD, CRRI, ये इनके साइंटिस्ट इन्वॉल्व है और इन सब ने मिलके और ये कोड बनाया हुआ. इसमें बहुत सारे IRC कोड, IS कोड, ये सब रेफर किए हुए हैं और ये कोड इस तरीके से बना हुआ है और इसके कई बार रिवीजन भी होते रहते हैं. तो ये लेटेस्ट रिवीजन के हिसाब से मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ. द मिनिस्ट्री हैज 2 विंग्स, रोड विंग एंड ट्रांसपोर्ट विंग. नाउ दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ कोड. आप में से बहुत से लोगों ने ये मोर्च का ये देखा होगा, तो ये लेटेस्ट है एंड इट कंटेन्स अबाउट 1000 पेजेस. तो ये जो मेरा लेक्चर है, ये एक लेक्चर में तो ये पूरा आना संभव नहीं है, पर इसमें से कुछ सेक्शंस मैंने लिए हैं. इसको, इस पूरे कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 10 से 15 लेक्चर्स चाहिए. पर फिर भी मैंने जो रोड के एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ सेक्शंस इसमें इंक्लूड किए हैं और ये प्रेजेंटेशन आपको आपके लिए बना है. अब इसके अंदर क्या है ये अपन देखते हैं. सबसे पहले तो व्हाट इज देयर इन दिस. सो देयर आर वेरियस सेक्शंस. About 32 sections are there and each section contains different subsections. Say section number 100 contains 21 subsection, 200 में 2 subsection है. Likewise 400 contains 10 subsections and 500 contains 20 subsections, 900 contains 3 subsections. Likewise the pile foundation, well foundation, brick masonry, pre-stressing, these all are included in this. Steel reinforcement, then open foundation, substructure, repair of structure, soil nailing, etc. So there are total 385 subsections. So you can see that how important is this for road engineers. और ये मैं ये कहूंगी कि this is a Bible for रोड इंजीनियर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको ये कोड के कुछ सेक्शंस रटे हुए होते हैं और वो आके इंजीनियर्स के साथ में बहस करते हैं. कई बार इंजीनियर्स को भी नहीं पता होता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं उस पेज पे उस सेक्शन में ये लिखा हुआ है. फिर कई बार इंजीनियर्स उसको देखते हैं. तो ऐसा हमारे पास सॉरी फिगर कट ना होना चाहिए. इसलिए अपने को ये जो कोड है, जो रोड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको ये इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. अब इसमें what is there in this? So every section deals with scope or definition, materials and specifications, desired grading, if any, because there are many gradings they have given in various sections, and construction steps, quality control test as per section 900. This is very important from the quality control point of view. The various tests they have given, frequencies they have given in this section. Then opening to traffic, when it should be open, the particular construction, when should it be open. Then measurement of payment, this is for contractor, and rates. Now the important section I will deal with. So first of all, section number 112, that is arrangement of traffic during construction. Whenever any construction is going on, there must be bypass near that construction. और वो जो bypass है, उसका जो section है, that should be like this. That 200 mm GSB, 225 WBM or WMM, premix carpet with seal coat. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिज बन रहा है या कोई रोड बन रही है और उसके बाईपास साइड में कोई रोड बन रही है और ऐसे ही बना दी, उसमें से व्हीकल जा रहा है, धूल उड़ रही है. तो दिस शुड नॉट बी देयर. इंजीनियर को ये अथॉरिटी है कि वो ये वाला सेक्शन वहां कंस्ट्रक्ट करे, एंड इंजीनियर्स ने जरूर करना चाहिए. 121 डील्स विथ फील्ड लैब. फील्ड लेबोरेटरी इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. सो for a big contractor, the field laboratory is must, and the equipments related with soil, bitumen mixers, cement concrete, and other equipments, say oven, etc.
all must be there, and bitumen extractor must be there, penetrometer must be there. So these equipments are used for quality control issues. And we'll start with section number 305, that is embankment construction. So this table shows the density requirements of embankment and subgrade materials. So whatever material is used in embankment, that should have high CBR. This you know very well. But the material should have maximum laboratory dry unit weight, which tested as per IS 2720 part 8 should be between 15.2 to 17.5 kilonewton per cubic meter. This is the density requirement of the material which is used in embankment. It should be used in embankment. Now this table shows the compaction requirement for embankment and subgrade. So relative compaction as percentage of maximum laboratory dry and density as per IS 2720 part 8 must be between 90% to 97% for various types of construction, that is subgrade, embankment, and for expansive clays, etc. They have given it in this table, and it should be followed by engineers. Then regarding section number 400. So this is for subbases and bases. Definitely it is for non-bituminous. No bitumen is used in this section 400, whatever is given. So it is without bitumen. And of course for shoulders. So there are 10 subsections. 401 is for GSB. Important one I will deal with. So 401 for GSB. 404 is for WBM, that is water-bound macadam. And 406 is for wet mixed macadam, that is WMM. And these are in general in use. That's why I will explain these in detail. Others are also there. 408 is their shoulders, island, medians, etc. So in detail they have given. As I have already told you that in one lecture this cannot be covered, but some important issues I have taken in this lecture. Now regarding section 400, it is 401 is for GSB, that is a granular subbase. You all know that this is drainage layer. So for drainage layer, liquid limit and PI are very important. And the material used here are natural sand, crushed gravel, crushed stone, or combination of these material. And grading ranges from 75 mm to 0.075 mm. And there are 6 gradings they have given. And it is said that it is required that liquid limit should be less than 25% and plasticity index should be less than 6%. Less than 6. So as you know that sand is permeable, fully permeable, पूरा का पूरा पानी उसमें से चला जाता है. That the PI of sand is 0. So for drainage material, the PI must be less. तो इसलिए ये IRC कहता है कि 6 से कम PI वाला मटेरियल ही यूज करेंगे. आप यदि मुरम लेके आएंगे कहीं से तो उसकी PI 6 से कम होनी चाहिए, तो ही आप उसको GSB के लिए यूज कर सकते हैं. Regarding compaction, up to 100 mm thickness, smooth wheeled roller of 80 to 100 kilonewton, and up to 200 mm thickness vibratory rollers are used. And maximum dry density to achieve should be 98% of MDD, maximum dry density. These are the requirements for GSB, for good GSB. Now these are the gradings for GSB. So grading 1, 2, and 5 and 6. These are close graded materials, and grading 3 and 4 are coarse graded. Close graded material means there is a grading pattern. तो आप देख रहे होंगे कि जैसे 1, 2 और 5 और 6 में एक पैटर्न है ग्रेडिंग का, और 3 और 4 में गैप है ग्रेडिंग में, तो ये कहलाते हैं कोर्स ग्रेडेड. तो यदि आपको वो क्लोज ग्रेडेड
कोर्स ग्रेडेड, दीज आर कॉल्ड कोर्स ग्रेडेड. यदि आपको क्लोज ग्रेडेड नहीं मिलते तो आप कोर्स ग्रेडेड भी यूज कर सकते हैं. और इसमें 75, अब इसमें एक देखिए कि इट द सीयू रेंजेस फ्रॉम द ग्रेडिंग रेंजेस फ्रॉम 75 mm टू 0.075 mm. मतलब आप देखो रेंज कितनी ज्यादा है. आप इमेजिन करो कि 75 mm का मटेरियल और 0.075 का मटेरियल, मतलब एकदम बारीक मटेरियल. तो ये जो ग्रेडिंग्स है इनको अचीव करने के लिए आपको सिंगल एग्रीगेट में कुछ नहीं मिलने वाला है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू मिक्स द एग्रीगेट्स टू गेट द डिजायर्ड ग्रेड. So in lab, you have to do the grading of various aggregates, and stone dust must be there because the material should passing through 0.075 is less than 5%, and all that you are seeing in that. तो इसमें क्या करना है, आपको हर एक इंडिविजुअल एग्रीगेट्स के जो आएंगे उनका ग्रेडिंग करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ विच मटेरियल इज टू बी यूज्ड टू गेट दिस ग्रेड. तो ये दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन द लैबोरेटरी टू फाइंड द डिजायर्ड, और फिर परसेंटेज फिक्स करके और वो परसेंटेज आपको फील्ड में यूज कर. और इसमें सीबीआर डेफिनेटली लिखा हुआ नहीं है, पर सीबीआर इसमें 20 to 30% ली जाती है. अब इसमें की कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ये शॉर्ट में लिखी है मैंने. दैट प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, स्प्रेडिंग एंड कॉम्पैक्शन, एंड देन surface finish. Now section number 404, that is water bound macadam WBM, which is used for subbase and base. ये रोड के सभी लोग रोड के बारे में जानते हैं, तो सबको मालूम होगा कि नीचे सबग्रेड होता है, फिर सबबेस होता है, फिर बेस होता है, फिर वियरिंग कोर्स होता है. तो WBM एज ए सब बेस भी यूज कर सकते हैं और एज ए बेस भी यूज कर सकते हैं. कुछ केसेस में सब बेस यूज करते हैं, कुछ केसेस में एज ए बेस यूज कर सकते हैं. अब इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो कौन सा होगा, क्रश्ड, ब्रोकन स्टोन, क्रश्ड स्लैग, ओवरबर्न और ब्रिक, और ये सब यूज कर सकते हैं. लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू शुड बी लेस देन 40%, इम्पैक्ट वैल्यू शुड बी लेस देन 30%, combined flakiness elongation index should be less than 35%. The aggregate should not be flaky, otherwise it will crush with when load will come on aggregates. It should not be elongated, otherwise it will fail in bending. तो ये इसीलिए ये इन्होंने लगाया हुआ है कि combined flakiness elongation index should be less than 35%. Now, this WBM is a very controlled construction, very time tested construction. टाइम टेस्टेड कैसे, बहुत टाइम से ये चला आ रहा है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है. अब इसका कारण क्या है, अच्छे रिजल्ट्स क्यों देता है? इसका कारण ये है कि बड़े एग्रीगेट्स, उसके जो गैप होगा उसके अंदर छोटे एग्रीगेट्स, और उसके अंदर फिर बाइंडिंग मटेरियल. आप ये जो फिगर है इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें 3 तरह के हैं, 3 तरह की ग्रेडिंग है. एक तो ग्रेडिंग 1 and 2 जिसको हम G1 and G2 बोलते हैं, स्क्रीनिंग A and B, एंड बाइंडिंग मटेरियल. तो 3 तरह के मटेरियल्स हैं इसमें. तो ये बड़े एग्रीगेट्स, उसके गैप में छोटे एग्रीगेट्स, और उसके भी जो गैप बचेगा उसमें बाइंडिंग मटेरियल. ऐसा यदि मास होगा तो वो जो होगा वो डेंस मास होगा आफ्टर कॉम्पैक्शन. और इसमें एक आप देख सकते हो जो फील्ड में काम करते हैं उनको पता है ये बात कि जब रोलर उस पे चलता है WBM पे, तो पूरी की पूरी जो WBM की सरफेस है जो 75 mm जो भी होती है या तो वो ऊपर आती है नीचे आती है, पूरी की पूरी 75 ऊपर आती है नीचे आती है, पूरी ऊपर. ऐसा नहीं होता कि एक लेयर कुछ उसमें से पोर्शन ऊपर आ जाए. तो ये इसलिए होता है कि कॉम्पैक्शन प्रॉपर है और इसके अंदर जो इसका डिजाइन है ये बहुत अच्छा किया हुआ है, मतलब ये टाइम टेस्टेड है. अब इसमें देखिए कि G1 और G2 का ग्रेडिंग ये 75 to 22.4 और 63 to 11.2 G2 है. तो ये ग्रेडिंग है. अगेन you can mix the aggregates to get this grading. Then A and B screenings, तो ये A और B का भी ग्रेडिंग दिया हुआ उन्होंने. मतलब ग्रेडेड एग्रीगेट्स, उसके अंदर भी और भी ग्रेडेड एग्रीगेट्स. मतलब आप सोच सकते हो कितना अच्छा कॉम्पैक्टेड मास बनता है इसका.
यदि प्रॉपर सुपरविजन किया जाए तो WBM बहुत अच्छी लेयर बनती है। ये PMGSY वाले इसको जो इंजीनियर्स है बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा WBM बनाते हैं, क्योंकि उनके वहां पे NQM SQM जाते हैं, जब टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, तो बहुत अच्छा इनको रिजल्ट्स मिलते हैं। और बाई इसके बाद में फिर बाइंडिंग मटेरियल वो भी यूज होता है इसमें। अब इसमें मैंने आपको कहा कि कंट्रोल कंस्ट्रक्शन WBM में, तो ये क्यों कंट्रोल कंस्ट्रक्शन? वो इसलिए कि इन्होंने क्वांटिटी भी फिक्स कर दी है। कैसे क्वांटिटी फिक्स कर दी है? ये लिखा है अप्रोक्सीमेट quantities of coarse aggregate and screenings required for 75 mm compacted thickness of WBM सब बेस और बेस कोर्स फॉर 10 स्क्वायर मीटर एरिया। मतलब इन्होंने कहा है कि यदि 75 mm की थिकनेस है और 10 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया है तो इतना मटेरियल आपको यूज करना होगा। मतलब यदि कॉम्पेक्शन के बाद कुछ एरिया पर्टिकुलर खोदा जाए और उसमें से मटेरियल निकालना जाए तो वो उतना मटेरियल यदि नहीं मिलता है, मतलब आपने वो मटेरियल उतना यूज नहीं किया। तो इसलिए ये आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट दिस इज अ कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन। दे हैव गिवन दैट लूज क्वांटिटी शुड बी बिटवीन 0.91 to 1.07 cubic meter should be used, and for screening also they have given, and for binding material also they have given. You can see section number 401. Then construction steps: preparation of base, subsurface drainage layer, lateral confinement must be there, otherwise भागेंगे एग्रीगेट्स इधर उधर, तो उनको भागने नहीं देना है अपने को, शोल्डर का मटेरियल पुट अप करना है। स्प्रेडिंग कोर्स एग्रीगेट, रोलिंग, application of screening, sprinkling of water and grouting, setting and drying. Then 406, that is WMM, wet mix mechanism. अब ये इसको आप ऐसे समझिए कि सीमेंट कंक्रीट जैसा होता है। तो सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट एंड एग्रीगेट उसको मिक्सर में मिक्स करके वो डालते हैं। सेम ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है, पर इसमें सीमेंट, ये सीमेंट कंक्रीट नहीं, ये इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो कौन सा होगा? क्रश्ड ग्रेडेड एग्रीगेट्स, ग्रेन्युलर मटेरियल, प्रीमिक्स विथ वाटर। प्रीमिक्स है ये। सिंगल कॉम्पैक्टेड वेट मिक्स मैकेडम लेयर शेल नॉट बी लेस देन 75 mm। और ये वाइब्रेटरी इक्विपमेंट जो होगा वो 200 mm के लिए यूज होगा। डेफिनेटली जब थिकनेस ज्यादा होगी तो वाइब्रेशन आपको वाइब्रेटरी रोलर से ही करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे की लेयर रह जाएगी कॉम्पैक्ट होने के से। अब मैंने जैसे आपको बताया कि सीमेंट कंक्रीट जैसा है ये, तो सीमेंट कंक्रीट जैसा है मतलब ये देखिए आप इसमें कि ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट फॉर WMM, तो ये क्या है 53 to 75 माइक्रोन, 53 टू mm टू 75 माइक्रोन, इतने बड़े से लेके इतने छोटे तक सभी एग्रीगेट्स। तो अगेन यू हैव टू मिक्स द एग्रीगेट्स टू गेट द डिजायर्ड ग्रेडिंग, एंड देन यू हैव टू मिक्स इट इन द मिक्सर and then put the water and then lay it on the field. So this is the procedure of WM. So WBM and WBM are different. WBM जो है वो अनस्किल्ड लेबर भी कर सकते हैं और करते ही हैं, और WMM में ये डिफरेंस है कि इसमें आपको मिक्सर की जरूरत होती है। यदि रिमोट प्लेस में जाना हो तो मिक्सर नहीं होता है कई बार, तो उस समय फिर WBM यूज करते हैं, पर WBM ही एक्सटेंसिवली यूज होता है, कहीं कहीं WMM भी यूज होता है। ऐसे बहुत नई नहीं है टेक्निक, पर बहुत WBM जैसी एकदम इतनी पुरानी भी नहीं। ये स्टेप्स है इसके: प्रिपरेशन ऑफ बेस, प्रोविजन ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट, प्रिपरेशन ऑफ मिक्स, स्प्रेडिंग ऑफ मिक्स। प्रिपरेशन ऑफ मिक्स मतलब वो सबको मिक्स करके और डिजायर्ड ग्रेडिंग तक लाना। स्प्रेडिंग ऑफ मिक्स, कॉम्पेक्शन, सेटिंग एंड ड्राइंग, इसके डिटेल आप कोड में देख सकते हो पूरा। नाउ सेक्शन नंबर 500, दैट इज बिटुमिनस। तो अब इसमें ये देखिए आप, देयर आर 20 सबसेक्शन। सो important are prime coat, tech coat, BM that is bituminous macadam, DBM that is dense bituminous macadam। उसके बाद में BC इंपॉर्टेंट है, पहले कभी SDBC हुआ करता था, पर अब ये नए इसमें उन्होंने SDBC हटा दिया क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, तो ये बिटुमिनस कंक्रीट कर दिया है उन्होंने। फिर ओपन ग्रेडेड, जो रूरल वाले जो लोग हैं, वो रूरल वाले इसमें होंगे कुछ लोग, तो वो OGPC यूज करते हैं 510, उनको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होता है।
511 511 सील कोट है, और बाकी जो है 512 512 513 दीज आर यूज्ड इन सम स्पेसिफिक केसेस। कहीं क्रैक्स हैं तो उसके लिए, या फिर कहीं इंटरसेक्शन है तो उसके लिए, ऐसे स्पेसिफिक केसेस के लिए ये यूज होते हैं। पर मेनली जो आपको ध्यान करना है वो करना है प्राइम कोड, टेक कोड, सील कोड, बीएम, डीबीएम, बीसी, ओजीपीसी और सील कोड। ये इतने जो है वो इन जनरल यूज में आते हैं। नाउ प्राइम कोड, प्राइम कोड, in prime code emulsion may be used or cutback may be used. Now there is a difference between emulsion and cutback. You know very well that emulsion is eco-friendly, but cutback is not eco-friendly. Why? Because in cutback bitumen is dissolved in volatile diluent, which will volatile, and it will go in the environment and it will pollute the system. That's why cutback should not be used. But bitumen emulsion is a cold mix, और ये bitumen emulsion जो है वो it is as per 8887 and it is as per IS 217, और जो bitumen है, जो penetration grade bitumen होता है, that is as per IS 73. penetration grade bitumen से विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमेन का रिलेशन भी है। पहले पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन यूज होता था, अभी उसको VG10, VG20, VG30 ऐसा बोला जाता है। नाउ in this, quantity of bitumen emulsion for various types of granular surfaces is also fixed. That's why it is a very good construction. बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें क्वांटिटी फिक्स है, रेट ऑफ स्प्रे फिक्स है। तो ये रेट ऑफ स्प्रे इतना होना चाहिए। रेट ऑफ स्प्रे आप ऐसा निकाल सकते हैं कि एक कागज वहां पे कर लीजिए, उसका एरिया निकाल लीजिए और उसमें कितना वेट आया है ये आप देख लीजिए, तो आपको रेट ऑफ स्प्रे मालूम पड़ जाएगा उसमें। तो केजी पर स्क्वायर मीटर उस कागज के इसमें अखबार के ऊपर कितना आया, उसी रेट आपको वही रखनी पड़ेगी स्प्रे की, तभी ये आ पाएगा। तो ये कटबैक का भी दिया है, पर कटबैक जो है वो जनरली यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इट इज नॉट इको फ्रेंडली। टेक कोड भी सेम है। अच्छा, अब डिफरेंस बिटवीन प्राइम कोड और टेक कोड में क्या है? प्राइम कोड जो होता है वो WBM और WMM, जो कि ग्रेनुलर सरफेसेस, जो कि नॉन बिटुमिनस सरफेस, उस पे जो इमल्शन का कोट यूज होता है वो कहलाता है प्राइम कोट। प्राइम मतलब सबसे पहला, प्राइम मतलब सबसे पहला। तो सबसे पहला कोट जो है वो कौन सा होता है? बिटुमेन इमल्शन का, विच इज नोन एज प्राइम कोट। नाउ टेक कोट, टेक कोट जो है तो टेक कोट ऑलरेडी कोई बिटुमिनस सरफेस है या फिर अभी नया बनाया हुआ है, तो उस पे जो कोट आएगा वो आएगा टेक कोट, और उसकी क्वांटिटीज जो है वो उन्होंने दी है। तो डेफिनेटली टेक कोट की क्वांटिटीज प्राइम कोट के कंपैरिजन में कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? बिकॉज द प्राइम कोट विल पेनिट्रेट into the pores of WBM and WMM, which are more porous than the surface which is already bituminous. तो इसलिए इसकी क्वांटिटी कम है और प्राइम कोट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये देखो, समझ लो इसको कि प्राइम कोट और टेक कोट दोनों में ये डिफरेंस है। कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि ये व्हाट इज प्राइम कोट, व्हाट इज टेक कोट। तो ये है, और इन्होंने ये क्वांटिटीज दे होगी 1/8। Then construction equipments are used in preparation of base, application of tech coat, curing मतलब उसको कितने देर तक रखना, उसको curing कहते हैं। curing मतलब ये नहीं कि पानी डाल, curing मतलब उसको कितनी देर तक रखना और उसके बाद में ट्रैफिक अलाउ करना। Now BM means bituminous macadam। अब ये BM की जो थिकनेस varies from 50 to 100 mm, and the materials used are bitumen, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन। दिस इज प्रीमिक्स। प्रीमिक्स मतलब हॉट मिक्स प्लांट में इसको तैयार किया जाता है। अब नाउ हियर द बिटुमेन यूज्ड मे बी 80-100। अब ये मैंने बताया आपको पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन आपको पता होगा, तो 80-100, 60-80 ऐसा बोलते हैं हम। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो बिटुमेन ग्रेड, विस्कोसिटी बिटुमेन ग्रेड बिटुमेन VG,
VG लिखा है, VG10, VG20, VG30, VG40, इस तरीके से ये लिखा हुआ, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो है। अब इसमें जब भी इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? दैट मिक्सिंग, लेइंग एंड रोलिंग टेम्परेचर्स फॉर बिटुमिनस मिक्सेस, सो दिस टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन द फील्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो कुछ जो टेम्परेचर है, जैसे VG40-30, इन सब के लिए जो दिया है बिटुमेन टेम्परेचर, एग्रीगेट टेम्परेचर, तो ये दोनों टेम्परेचर आपको हॉट मिक्स प्लांट पे लेने। तो इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि ये 100 से ऊपर है, कैसे करें, कैसे होगा? तो द थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड and you have to see the temperature, and if the temperatures are less, then you should reject that particular part. So bitumen temperature, aggregate temperature, mixed material temperature, laying temperature, रोलिंग टेम्परेचर। तो लेइंग और रोलिंग और मिक्स मटेरियल ये सब आपको फील्ड में जैसे ही ट्रक आता है उसमें थर्मामीटर डाल के और आपको जो है वो टेम्परेचर इसके देखने होते हैं, ये जरूरी है। और यदि ये टेम्परेचर नहीं है तो आप उस लोड को बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि यदि आपने ठंडा मटेरियल डाल दिया तो इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस एंड द रोड विल नॉट, मतलब वो रोड जो है वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई। अब ये जो ग्रेडिंग आपका यूज करना है बीएम में, दिस टू टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग्स आर देयर। So for nominal maximum size layer thickness, now the layer thickness is between 80 to 100. This is between 50 to 75. This grading is used. Again, to get this grading, you have to mix the aggregate. This is all that is always there, that you have to mix the aggregate, because the sieve size ranging from 45 mm to 0.07, and the bitumen percentage here is 3.3 to 3.4%। पहले जो है वो 3.1 to 3.5 था, पर अब उन्होंने ये बढ़ा दिया है, क्योंकि बीच में बीएम के साथ बहुत शिकायतें आ रही थी कि बीएम अच्छा नहीं है, तो फिर उन्होंने परसेंटेज बढ़ा दिया। इसके पहले वाला जो था, वो जो कोड था इसके रिवीजन के पहले वाला, तो उसमें 3.1 था, पर अभी इन्होंने अच्छा कर दिया है, तो इसको ले लिया है। Now the preparation of base, take coat, preparation and transportation of mix, spreading, rolling, ये इसकी steps। Now DBM, DBM is dense bituminous macadam। ये BM से और अच्छा कंस्ट्रक्शन, जहां ज्यादा ट्रैफिक हो, ज्यादा लोड हो, CVPD ज्यादा हो, CVPD मीन्स कमर्शियल व्हीकल पर डे, ये यदि जहां पे ज्यादा हो तो वहां पे DBM का यूज करना है। तो लेयर्स कैसी होती है? नीचे GSB होती है, नीचे तो आपकी सॉइल रहेगी, फिर एम्बैगमेंट रहेगा, फिर सब बेस रहेगा, फिर बेस, हेलो, फिर सब बेस रहेगा, फिर बेस रहेगा, उसके बाद में सब बेस में GSB रहेगा, बेस में WBM या WMM रहेगा, उसके ऊपर DBM रहेगा या BM रहेगा, BM और DBM रहेगा, और उसके ऊपर फिर BC रहेगा। ये मैं जो सेक्शन बता रही हूँ, ये आपका सेक्शन नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर एक्सप्रेस हाईवे जो अच्छा सेक्शन है उसके लिए बताया, और रूरल रोड के लिए अलग है। रूरल रोड के लिए है एम्बैंकमेंट, GSB और WBM और WMM और OGPC विद सील कोड, 20 mm का OGPC विद सील कोड लिया जाता है। Now DBM is used mainly but not exclusively in base, binder and profile correction. The thickness of single layer shall be 50 mm to 100 mm. ये मटेरियल है इसमें यूज होने वाले, that is bitumen, coarse aggregate, fine aggregate, filler. Hello, ma'am. No, Due to filler. time. Hello, ma'am. Yes, you can see from the code. Now this is the grading for DBM. So you have to mix the aggregates to get the desired grading. This is for different thicknesses. तो यदि thickness 75 और 100 के बीच में हो तो grading number 1 यूज करेंगे. If the thickness of DBM is between 50 to 75, then grading number 2 is used. Now here in DBM, whenever you are designing the DBM, then you have to give the optimum bitumen content to the contactor.
मतलब कॉन्ट्रैक्टर को ये बताना पड़ेगा आपको कि कितना परसेंटेज बिटुमेन आपको मिलाना है। तो ये जो परसेंटेज बिटुमेन जो कॉन्ट्रैक्टर मिलाता है ना, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट, एंड दैट इज कैन बी फाइंड आउट यूजिंग जॉब मिक्स फार्मूला। तो जॉब मिक्स फार्मूला इज नॉट ए फार्मूला, बट इट इज अ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट है, it is a document which a contractor should submit to the engineers who is in charge of that particular work 15 days prior to the start of the work. तो जब भी स्टार्ट होने वाला होगा उसके 15 दिन पहले उसके पास जॉब मिक्स फार्मूले के डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्टर पहुंचाएगा। तो व्हाट जॉब मिक्स फार्मूला कंटेन्स सोर्स एंड लोकेशन ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल कहाँ से लाया गया है वो सब बताएगा उसमें। एग्रीगेट, टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट, टेस्टिंग ऑफ बाइंडर, टेस्ट रिजल्ट्स उसके होना चाहिए उसके अंदर। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, कौन सा ग्रेडिंग यूज कर रहे हो आप एग्रीगेट का, एग्रीगेट कैसे यूज कर रहे हो, कंबाइंड ग्रेडिंग, विच ग्रेडिंग यू विल बी यूजिंग। देन मार्शल रिजल्ट्स मस्ट बी गिवन in that is VMA, VFB, percent voids, flow, Marshall this stability, all these they must be given, and he must write the maximum temperature and mixing temperature and compacting temperature, कि मैं मिक्सिंग के टाइम ये टेम्परेचर रखूंगा और कॉम्पैक्टिंग के टाइम ये टेम्परेचर रखूंगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर जॉब मिक्स फार्मूला देगा इंजीनियर को, तो ये जॉब मिक्स फार्मूला वो किसी एथेंटिक लैब से करवाएगा, बनवाएगा। कैसे बनवाएगा कि वो मटेरियल एथेंटिक लैब को देगा, लैब जो है उसको पूरा टेस्ट करके, मार्शल टेस्ट करके, मिक्सिंग करके और ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट निकाल के देगी। और जो है वो ये वाली जो टेबल आपको दी है, बताई हुई है, रिक्वायरमेंट फॉर डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम, तो ये रिक्वायरमेंट को अचीव करते हुए एथेंटिक लैब उसको जॉब मिक्स फार्मूला बना के देगी कॉन्ट्रैक्टर को, और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंजीनियर को सबमिट करे। सो दिस इज द प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर खुद ही बना ले और खुद ही करके और दे दे अपने साइन कर, उसको ऑथेंटिक लैब से करवाना जरूरी है। और ये जो इसका बिटुमेन जो है परसेंटेज करीब करीब 5.5 से लेके 6% तक, 5.8 तक परसेंट तक का बिटुमेन, इसमें 6% तो बीसी में यूज होता है, तो इतना बिटुमेन 5.5 5.7% बिटुमेन इसमें आता है। और उसमें मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट बी के लड़कों ने, एमई के लड़कों ने की हुई है, तो उसमें अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, तो काफी लंबी प्रोसीजर है, पर वो प्रोसीजर करके और फिर ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट निकाल के और पूरी रिपोर्ट अच्छा डॉक्यूमेंट्स बना के और वो कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है। सो वी हैव डन लॉट ऑफ कंसल्टेंसी रिगार्डिंग दिस इन आवर इंस्टीट्यूट। Now these are the construction steps, that is preparation of base, prime coat is to be laid, take coat is to be laid, mixing and transportation of mix, that is because it is a pre-mixed, and from hot mix plant it is to be brought to the site, और वहां पे फिर मिक्सिंग टेम्परेचर देखना, ये सब करना पड़ता है। देन स्प्रेडिंग एंड रोलिंग, तो इसके डिटेल्स जो है वो उसमें कोड में दिए हुए हैं, वो अभी मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया हुआ। नाउ बिटुमिनस कंक्रीट। अब बिटुमिनस कंक्रीट में दिस इज अ सिंगल लेयर, ये बहुत बहुत रिच लेयर, बहुत अच्छी लेयर। ये लेयर जो है वो टॉप लेयर है, और एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे या जहाँ ज्यादा सीवीपीडी है, ऐसी रोड के लिए ये टॉप लेयर जो है वो बीसी की बनाई जाती है। तो सिंगल लेयर शेल बी 30, 40, 50 mm थिक। मटेरियल इसमें कौन कौन सा यूज होगा, बिटुमेन एज पर IS 73, है ना, IS 73 कटबैक और वो नहीं, IS 73 वाला बिटुमेन मतलब पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन या फिर विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमेन जो अभी उसको बोलते हैं। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड फिलर, फिलर के सेम वही रिक्वायरमेंट है जो मैंने पहले बताए थे। और द ग्रेडिंग which should be used in this type of construction, तो ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2 में भी यूज्ड फॉर वेरियस थिकनेसेस, अलग अलग थिकनेसेस के लिए अलग अलग ग्रेडिंग है, डिपेंडिंग अपॉन द नॉमिनल एग्रीगेट साइज। जैसे 19 mm है तो उसके लिए 50 mm थिक दे दिया,
और 13.2 mm यदि मैक्सिमम साइज है तो 30 to 40 mm, ऐसा उल्टा बोलो कि 30 to 40 mm यदि थिकनेस का बीसी डालना है तो उसके लिए 13.2 mm का एग्रीगेट यूज करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला हुआ। एंड ये जो दिया हुआ है देखिए आप इसमें कि 5.2 मिनिमम दिया है इसने, मिनिमम 5.2, मिनिमम 5.4। अब ये देखिए सेकंड में जो है वो ज्यादा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये फाइन एग्रीगेट्स है, और फाइन यदि ग्रेडिंग होगी तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बिटुमेन भी ज्यादा लगेगा, 6% तक का भी बिटुमेन इसमें आ जाता है। अब इसकी जो स्टेप्स है क्या क्या है कि वेदर एंड सीजनल लिमिटेशंस है उसके, प्रिपरेशन ऑफ बेस, टेक कोट वो जो इमल्शन है उससे, वो रेट ऑफ स्प्रेड वगैरह सब देखना है, मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिक्स, स्प्रेडिंग एंड देन रोलिंग। तो रोलर्स भी क्या कि कौन सा 80 to 100 किलोमीटर रोलर होना चाहिए, उसकी स्पीड क्या होना चाहिए, उसका जो कॉम्पेक्शन करते हैं उसको ओवरलैप कितना होना चाहिए, और कॉर्नर से लेके सेंटर तक आना चाहिए या सेंटर से, ये सब डिटेल्स जो है वो कंस्ट्रक्शन में दिए गए, तभी तो इतना वो 1000 पेजेस का ये कोड बना हुआ। देन ओजीपीसी, ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट, ये जो है ये रूरल रोड वाले यूज करते, पीएमजीएसवाई। तो अब ये देखिए इसकी लैंग्वेज, the work shall consist of preparation, laying and compaction of an open graded premix surfacing of 20 mm thickness composed of small size aggregate premixed with a cationic bitumen emulsion on a previously prepared surface. So this is the language of scope of the work. हर एक सेक्शन में आपको इसी तरह की लैंग्वेज मिले। तो ये जो है वो केटियोनिक बिटुमेन इमल्शन दो तरह के हैं, केटियोनिक और एनियोनिक। तो जो एग्रीगेट्स जो होते हैं उनपे भी कुछ चार्ज होता है, तो जो केटियोनिक बिटुमेन इमल्शन है वो उसके अपोजिट चार्ज वाले एग्रीगेट्स के लिए यूज होंगे, और एनियोनिक जो है उसके अपोजिट चार्ज के लिए। तो अपने यहाँ जो बिटुमेन है, जो सॉरी एग्रीगेट्स हैं, ब्लैक ट्रैप या ये जो भी एग्रीगेट्स हैं बीटी मेटल्स, उसके लिए केटियोनिक बिटुमेन इमल्शन इज सुटेबल, क्योंकि दोनों का अपोजिट चार्ज है और वो अट्रैक्ट करते हैं। और द मटेरियल यूज्ड बाइंडर एंड एग्रीगेट्स। अब इसमें देखिए इन्होंने ये ग्रेडिंग नहीं है इसका, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, कोर्स क्वांटिटीज ऑफ एग्रीगेट फॉर 10 स्क्वायर मीटर एरिया। तो कोर्स एग्रीगेट नॉमिनल 13.2 mm साइज, पासिंग IS 22.4 mm CU एंड रिटेन। ग्रेडिंग नहीं दिया है, उन्होंने कहा इसमें से पासिंग, इस पे रिटेन, इतने ले लो आप, बस ऐसा बोलो। और कोर्स एग्रीगेट इतने से इतने तक के इतने ले लो और टोटल इतना ले लो, और बाइंडर आप इतना ले, ऐसा उन्होंने इसमें बोला हुआ है कि इसमें ओजीपीसी ओपन ग्रेडेड, ओपन मैंने बताया ना, ओपन ग्रेडेड और क्लोज ग्रेडेड। ओपन ग्रेडेड मतलब एक से पासिंग एक पे रिटेन, उसको बोलते हैं ओपन ग्रेडेड। क्लोज ग्रेडेड मतलब there is a particular grading pattern which you have to follow, that is known as close graded. Now construction, preparation of surface, preparation of binder, then take coat, preparation of premix, spreading and rolling, and then seal coat. Yes, OGPC पे seal coat भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि उसका सरफेस थोड़ा सा रफ रह जाता है, तो उस पे वो सील कोट डालते हैं। तो ये है सील कोट। तो सील कोट क्या है? फॉर सीलिंग द वॉइड्स इन द बिटुमिनस सरफेस लेड टू द स्पेसिफाइड लेवल्स, ग्रेड एंड क्रॉस वाल्स। दो टाइप के, ए टाइप, बी टाइप। लिक्विड सील कोट कंप्राइजिंग ऑफ लेयर ऑफ बिटुमिनस बाइंडर फॉलोड बाय कवर ऑफ स्टोन चिप्स। बिटुमिनस बाइंडर ले कर दीजिए, उस पर स्टोन चिप्स डाल दीजिए, पर ये जनरली यूज नहीं होता है, पहले होता था। बी में प्रीमिक्स सील कोट कंप्राइजिंग ऑफ थिन एप्लीकेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट प्रीमिक्स्ड विद बिटुमिनस बाइंडर। तो ये पीएमजीएसवाई वाले ये बी वाला यूज करते हैं कि एक से पासिंग एक पे रिटेन, उतना बिटुमेन उसमें डाल दिया, उसको मिक्स कर लिया और हॉट मिक्स, और उसको फिर उसको ओजीपीसी पे सील करने के लिए यूज किया। ना कुछ स्पेशल टाइप के भी हैं इसमें, जैसे स्लरी सील है। स्लरी सील जो है वो क्रैक्स के लिए काम आता है,
जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दिया हुआ है इसमें, जैसे 2 to 3 mm के क्रैक्स हो, या 4 to 6 mm के क्रैक्स हो, या 6 to 8 mm के क्रैक्स हो। तो इसमें एग्रीगेट, फिलर, वाटर, एडिटिव, तो इमल्शन जनरली यूज इसमें होता है। इसमें इमल्शन भी आप 3 तरह के, स्लो सेटिंग, मीडियम सेटिंग, और इसके और अलग अलग टाइप्स हैं। तो इसमें स्लो सेटिंग वाला यूज करते हैं। अब एक है फॉग स्प्रे। तो फॉग स्प्रे it work covers a very light application of low viscosity bitumen emulsion for the purpose of sealing cracks less than 3 mm wide। ये भी यूज करते हैं कुछ लोग। तो फॉग स्प्रे ये इसमें इमल्शन 887 के हिसाब से या किया जाता है। देन मेस्टिक एसफाल्ट, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इन जनरल ये इंटरसेक्शन पे यूज होता है। तो इंटरसेक्शन पे क्या होता है, स्टैंडिंग व्हीकल्स ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे ये मेस्टिक एसफाल्ट यूज होता है। तो ये क्या है, एक बहुत बहुत अच्छा टाइप का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि बिटुमेन का परसेंटेज भी ज्यादा है। और मेस्टिक एसफाल्ट इज एन इंटीमेट होमोजीनियस मिक्सचर of well graded aggregates, filler and bitumen in such proportion as to yield a plastic and voidless mass। बहुत अच्छा मास मिलता है, तो बड़ा बढ़िया सर्फेस उसका दिखता है, which when applied hot can be troweled and floated to for a very dense impermeable surface। बहुत बढ़िया इसका सरफेस हमको मिलता है, और इसमें बहुत केयरफुली इसको करना पड़ता है। इसका मटेरियल भी बहुत केयरफुली लेना पड़ता है, तो वो डिटेल उसमें दिए हुए हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिया मैंने। तो मटेरियल्स में बाइंडर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, ये मटेरियल इसमें यूज होता है। नाउ सेक्शन नंबर 900, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, विच डील्स विथ क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। अब क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज में कैसे कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे वो क्वालिटी का है कि नहीं, इसको देखने के लिए आपको ये भी देखना है कि थिकनेस प्रॉपर है कि नहीं, इरेगुलरिटीज है कि नहीं, मटेरियल प्रॉपर आया है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग हुई है कि नहीं, ये सब कुछ आपको देखना है, तब कहीं जाके वो रोड अच्छी आपको मिलती है। तो जैसे मैं बार बार बोलती रहती हूँ पीएमजीएसवाई का, तो पीएमजीएसवाई का स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि हमारे इंजीनियर्स जो हमारे पास आते हैं, तो वो तो हैं ही, वो तो देखते ही है काम। कंसल्टेंट्स अलग होते हैं, एसक्यूएम अलग होते हैं। एसक्यूएम मीन्स स्टेट क्वालिटी मॉनिटर, मतलब उसी स्टेट का कोई रिटायर्ड इंजीनियर आके वहां क्वालिटी कंट्रोल वर्क देखेगा। एनक्यूएम मतलब नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स, मतलब वो बाहर से दूसरे स्टेट से आते हैं और वो पूरा क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं, और उनका एक प्रोफार्मा है कि पर्टिकुलर रोड यदि वो विजिट करेंगे तो वो उस पे बहुत सारे टेस्ट लगाएंगे और फील्ड डेंसिटी निकालेंगे, दूसरे टेस्ट देखेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, और एक पूरा प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा को भरना होता है। एसक्यूएम भी भरेगा, एनक्यूएम भी भरेगा, और वो प्रोफार्मा फिर एनआरआईडीए में सबमिट होता है, और उसके बाद में वो देखते हैं कि ये जो एनक्यूएम ने ये प्रॉपर काम किया है, कि मतलब एनक्यूएम ने जो रिपोर्ट किया, एनक्यूएम तो नहीं करवाएगा, पर जो रिपोर्ट किया है वो उन्होंने प्रॉपर रिपोर्ट किया है कि नहीं, कि ऐसे ही भर दिया है, इस तरीके से भी चीजें होती है सब। तो ये इन्होंने पीएमजीएसवाई ने ये बहुत अच्छी स्टेप, ये जो स्कीम ही है ये बहुत ही अच्छी है, मैं हमेशा ही तारीफ करती हूँ इसकी, और सभी लोग करते हैं पूरे नेशनल वाइड, ये मालूम है सबको। तो इसमें इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है, और क्वालिटी मिलती है वो। तो एनक्यूएम और एसक्यूएम के जो प्रोफार्मास थे उनको मैं चेक करने गई हूँ, कई बार भोपाल गई हूँ, कई बार दिल्ली गई हूँ एनआरआरडीए में, तो उनके एनक्यूएम के पूरे प्रोफार्मा वो मालूम पड़ जाता है कि ये इन्होंने ऐसे ही भरे हैं, या इनके जो रिजल्ट है प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये पूरा ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज का मैंने इसीलिए इतना बताया इसके बारे में, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि यदि आपने रोड बनाई और इतना सारा पैसा उसमें लगाया हुआ है, तो यदि आपने क्वालिटी नहीं दी है तो आपका जो गवर्नमेंट का पैसा है पूरा वेस्ट जाता है। और आजकल तो मैं आपको ये पीएमजीएसवाई का बता रही हूँ, तो इसमें
तो आजकल गांव वाले भी इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि वो साइट पे आते हैं, देखते हैं और वो बोलते हैं, वो पूछते हैं कि सीबीआर क्या है इसकी, जबकि सीबीआर उनको पता क्या सीबीआर क्या है मालूम, पर फिर भी मतलब इतना अवेयरनेस आ गई है लोगों। तो हमको जो हमारी ड्यूटी है इंजीनियर्स की कि हमको अच्छी रोड देना है, इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज को हमको जरूर एड्रेस करना। तो 901 जनरल, 902 कंट्रोल ऑफ अलाइनमेंट लेवल एंड सर्विस रेगुलरिटीज, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ऐसे 3 इन्होंने इसमें सब सेक्शंस दिए हुए। तो अब ये वन बाय वन अपन देखते हैं। तो 900-1 मतलब ये फर्स्ट टेबल क्या कहता है, टॉलरेंस इन सरफेस लेवल्स, मतलब हम सरफेस लेवल को कितना टॉलरेट करें, किस किस केस में कितना टॉलरेट करें। सब ग्रेड के केस में कितना टॉलरेट करेंगे, ±20 mm। सब बेस के केस में फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितना टॉलरेट करेंगे, ±10 mm। कॉन्क्रीट पेमेंट में ±6 mm। बेस कोर्स फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट ±6 mm, ±10 mm, ±15 mm for granular, and then for various courses. So this is the range of tolerance for various layers, and it should be followed in the field for better quality concrete. Now this second table 900-2 is for maximum permitted number of surface irregularities. अभी जो हमको रिसर्च प्रोजेक्ट मिले हुए 2, उसमें एक वेट मिक्स मैकेडम का दिस कोल्ड मिक्स का है और एक प्लास्टिक का है। उसमें हमको रफनेस निकालनी है, चाहे मर्लिन से निकालनी हो। मर्लिन एक इक्विपमेंट है जो साइकिल जैसा दिखता है, बहुत से लोगों को पता होगा। तो उसको चला के और उसकी इवन अनइवननेस हमको देखनी है। तो ये इन्होंने रूरल रोड में भी ये सब किया है, तो अर्बन में तो करना ही है हमको। तो रेगुलरिटी इसके बारे में क्या कहता है कोड, दैट सरफेसेस ऑफ कैरिजवे एंड पेव्ड शोल्डर्स, उसके लिए ये दी हुई है 4 to 4 mm। इरेगुलरिटीज के लिए 300 लेंथ हो यदि, तो नंबर ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज ऑन नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेस हाईवेज में 15 अलाउड है, ऐसा बोलता है कोड। और नंबर ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज ऑन रोड्स ऑफ लोअर कैटेगरीज में 40 अलाउड है। तो कितना कितना किस किस के लिए अलाउड है ये सब इन्होंने दिया है। इरेगुलरिटीज 4 mm, 7 mm और वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ सरफेसेस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और इनकी लेंथ भी दी है, इरेगुलरिटी दी है और नंबर दिया। तो ये जो टेबल है ये फॉलो करना होता है फील्ड में क्वालिटी कंट्रोल। नाउ 900-3 ये टेबल बताती है आपको दैट what are the various tests that should be conducted for a particular type construction and their frequency. So what they have given that control test and their minimum frequency for sub bases and base. Sub bases and base के लिए अलग है, wearing course के लिए अलग टेबल। तो जैसे मान लो ग्रेनुलर लिखा है मतलब जीएसबी, अब जीएसबी में आप मोरम यूज किया जाता है, तो मोरम में जो टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट उसमें होंगे। So what are the tests? Gradation, Atterberg's limit, then this moisture content, density of compact layer, deleterious constituent, CBR। तो ये सब टेस्ट वहां पे लगाने होंगे। और कितने लगाने होंगे, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 1 test per 400 cubic meter। Although I know that these are large number of tests, क्योंकि ये कई बार होता है कि ये इतने सारे टेस्ट कैसे करेंगे। हमारे पास भी एक आईडी की कंसल्टेंसी आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वही आईआरसी के हिसाब से 900 के हिसाब से टेस्ट करो, तो हमने निकाल के दिए थे, तो इतने सारे टेस्ट करने पड़ रहे थे। तो ये दिया है इन्होंने हालांकि कि 1 टेस्ट पर 400 क्यूबिक मीटर, फिर ये 1 टेस्ट पर 400 क्यूबिक मीटर। तो ऐसे सभी टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है उन्होंने, जो हमने देखे ना 401, 402, 403। तो 401 के लिए क्या, 402 के लिए कौन कौन से टेस्ट, तो जो जिसमें मटेरियल यूज होता है वैसे उस तरीके के टेस्ट होते हैं उसमें। WBM, अब WBM में एग्रीगेट्स यूज होते हैं, तो एग्रीगेट्स में इम्पैक्ट, ग्रेडिंग, कंबाइंड फ्रिक्वेंसी इलॉन्गेशन इंडेक्स,
फिर जो है वो बाइंडिंग मटेरियल के लिए है ना। तो ये सब टेस्ट है और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वेट मिक्स मैकेडम के लिए भी दिया हुआ उन्होंने। तो हमारे पास जैसे डिजाइन के लिए आता है, कंसल्टेंसी आती है वेट मिक्स मैकेडम की, कि वेट मिक्स मैकेडम डिजाइन करके दीजिए हमको। तो वो अलग अलग बैग्स में मटेरियल लाते हैं, फिर हमको ग्रेडिंग करके और उसका हम बताते हैं कि भाई इस प्रोपोर्शन में इसको मिक्स करो और ये तो आपका वेट मिक्स मैकेडम का मटेरियल आपको मिलेगा। और आपकी उसकी हम पीआई और एलएल भी चेक करते हैं कि पीआई एलएल यदि विद इन लिमिट है 25% से कम और 6 से कम यदि है तो फिर वो मटेरियल ठीक है, नहीं तो नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा। ये जो है, ये जो टेबल है 900-4 कंट्रोल टेस्ट फॉर बिटुमिनस 1, पहला वाला जो था वो नॉन बिटुमिनस 1 का, 900-3 वाली। अब ये जो 4 वाली है ये कौन सी है, बिटुमिनस के लिए। तो प्राइम कोड, टेक कोड, इन सब के लिए जो है वो उसमें बाइंडर यूज होगा डेफिनेटली। तो बाइंडर के जो टेस्ट होंगे वो सब लगाए जाएंगे, पेनिट्रेशन, विस्कोसिटी, डक्टिलिटी, ये सब जितने भी टेस्ट है वो सब लगाए जाते हैं उसमें। सील कोट में एग्रीगेट, जहां एग्रीगेट यूज होगा उसके एग्रीगेट के टेस्ट होंगे, और जहां बिटुमेन होगा वहां बिटुमेन के टेस्ट होंगे। तो जैसे ओजीपीसी, ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट में जो रूरल रोड वाले करते हैं तो उनके लिए ये सब टेस्ट है। एग्रीगेट में एक स्ट्रिपिंग टेस्ट होती है। स्ट्रिपिंग कई बार बिटुमेन के साथ में उसका एडेजन अच्छा नहीं होता है, तो वो ऐसे एग्रीगेट यूज नहीं करना है हमको जो कि जिसका बिटुमेन के साथ में एडेजन अच्छा नहीं हो। तो वो स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है एक बिटुमेन इस केस में, रोड केस में। और एक साउंडनेस टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउंडनेस से हमको वेदरिंग इफेक्ट मालूम पड़ता है कि वेदर का इफेक्ट उस पर तो नहीं आ रहा है, वेदर से डिसइंटीग्रेट तो नहीं हो रहा है। तो लेबोरेटरी में हम सिमुलेशन से उसको साउंडनेस टेस्ट करते हैं। अब बिटुमिनस मैकेडम, फिर यही सेम हो गया कि एग्रीगेट और बिटुमेन के टेस्ट करते हैं। डीबीएम में भी वही सेम टेस्ट है, पर इनकी फ्रीक्वेंसी भी इन्होंने दे रखी है, बहुत ज्यादा है वैसे, ये आई नो दिस वेरी वेल, बट स्टिल इट इज गिवन। देन ये है दूसरे दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिया हुआ इन्होंने। फिर स्लरी स्टील में जो मटेरियल होता है उसकी भी टेस्टिंग वेस्टिंग होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। डोमेस्टिक एसफाल्ट का भी दे रखा है इन्होंने। अब ये जो दो इक्विपमेंट मैंने स्पेशली इसमें रखे हैं ये बताने के लिए कि these are used for quality control. Now first equipment is bitumen extractor, you must have seen in the laboratory. So this equipment is used to find out the percentage of bitumen used in BM or DBM or BC. तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को आपने परसेंटेज ओबीसी निकाल के दिया है, क्या कॉन्ट्रैक्टर वो परसेंटेज यूज कर रहा है क्या? तो आप फील्ड में से सैंपल लाके और ये इसकी टेस्ट करते हो। ये मैनुअल भी हो, ये इक्विपमेंट मिलता है जो कि आप उसको इधर उधर कर सकते हो, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी है। तो इससे आप परसेंटेज ऑफ बिटुमेन निकाल सकते हो, और ये निकालना चाहिए। और यदि आपके पास आप यदि इंजीनियर इंचार्ज हो और आपकी जीप में ये दोनों इक्विपमेंट है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ये डर रहेगा कि ये इंजीनियर तो ये इक्विपमेंट लेके घूमता है। कौन कौन से? बिटुमेन एक्सट्रैक्टर और पेनेट्रोमीटर। पेनेट्रोमीटर किस लिए? बिटुमेन की क्वालिटी, बिटुमेन उस पर्टिकुलर ग्रेड का है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हो वहां पे। तो मेन ये, यदि आपने टेस्ट न भी किए और सिर्फ ये 2-4 जगह किए और ये इक्विपमेंट लेके घूमे यदि आप, तो उतने में भी आपका एकदम ये होगा कि अरे ये इंजीनियर्स जो है ये इक्विपमेंट लेके चलते हैं साथ में, और ये क्वालिटी कंट्रोल, हमको क्वालिटी अच्छी देनी है, हमको हमको उतना परसेंटेज यूज करना पड़ेगा। ये सब इक्विपमेंट क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज। तो इस तरीके से ये पूरा अपना ये नोट है, पर ये नोट को पूरे को एक लेक्चर में देना बहुत मुश्किल है। आपने जैसे देखा 1000 पेजेस हैं इसमें, 32 सेक्शंस है, 324 सब सेक्शंस है, और हर एक में कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल्स है। तो ये सबको एक लेक्चर में देना बहुत मुश्किल है। अभी मैंने इसीलिए इस लेक्चर में सेक्शन नंबर 300 का जो अमेंडमेंट का जनरली यूज होता है वो यूज देखा मैंने। ओवरऑल आई कैन
summarize this that मैंने एक वो जो important 112 लिया जो कि alternative road बनाई जाती है वो लिया, 120 लिया that is fill lap, then I took 305 that is embankment, then I took section number 400 that is GSB, WBM and WMM without bitumen which is used, and then I took section number 500. So in that this prime coat, tech coat, seal coat, BM, DBM, BC, then domestic asphalt, and PMG, this OGPC and seal coat. So these I have taken. Apart from this, you must see the codes. That is IS 888-7, IS 217, and IS 70. These codes are used for bitumen. तो जैसे कटबैक के लिए है 217, हिमाचल के लिए 888-7 और बिटुमेन पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन के लिए है IS 73. तो ये सब चीजें आपको एक साथ में रखनी पड़ेगी ये कोड के साथ में. और इफ यू आर इंजीनियर इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर रोड, और फॉर स्टूडेंट्स के लिए तो ये है कि वो आगे जाके कुछ जो भी काम यदि उनको वो करते हैं, कहीं कंसल्टेंसी में जाते हैं या रोड पे कोई इंचार्ज होते हैं या कुछ होते हैं, तो उनके लिए ये सब जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इस कोड में, इस मोर्थ में क्या क्या दिया हुआ है. सो मैं हमेशा क्लास में भी यही बात बोलती हूँ कि दिस इज बाइबल फॉर रोड इंजीनियर्स. और इसकी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत इसको एक बार में तो पूरा पढ़ा नहीं जा सकता है या फिर इसको बहुत बार बार पढ़ने से ही चीजें मालूम होती है. तो इसलिए इसको टाइम टू टाइम जैसा ही टाइम मिले इसको पढ़ते रहना चाहिए हम स्टूडेंट्स के लिए है वैसे ही. और जो फील्ड इंजीनियर्स है उनको भी इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तो तभी फिर अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हम दे पाए. तो बस ये इतना ही था इसमें मोर्थ स्पेसिफिकेशन में. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग.